Dear students, angle between a plane and a straight line. इसके पहले अपन ने एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन पढ़ा था. एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए स्ट्रेट लाइन. एंगल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस. एंगल हमेशा किसके बीच बनता है? लाइंस के बीच. लेकिन जब एक कोई लाइन प्लेन पर आती है तो प्लेन के किस डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी ये हम डेफिनेटली नहीं शो कर सकते. बट प्लेन की यूनिक चीज क्या है कि ईच प्लेन कंटेंस ए यूनिक नॉर्मल. ईच प्लेन कंटेंस ए यूनिक नॉर्मल. मतलब प्लेन का नॉर्मल यूनिक होता है. एंड इफ वी ड्रा ए नॉर्मल ऑन द लाइन देन इट मेक्स, इफ लाइन मेक्स angle theta with plane, then angle 90 minus theta is made by normal to the line. यदि अपना प्लेन है, अब प्लेन का जो नॉर्मल है, लाइन किसके बीच की प्रॉपर्टी है? लाइन प्रॉपर्टी है टू प्लेन, एंगल प्रॉपर्टी है टू लाइंस के बीच में. तो एंगल जब एक प्लेन पर हम एंगल कह रहे हैं या इस तरह से एंगल बन रहा है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. जिस पॉइंट पर करेगी किस साइड से एंगल लेंगे, इधर भी 360 में एंगल बनते हैं. तो प्रॉपर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके नॉर्मल से, नॉर्मल और लाइन को ज्वाइन कराते हैं. तो नॉर्मल यदि ये मान लें कि प्लेन के साथ स्ट्रेट लाइन का एंगल थीटा है तो नॉर्मल के साथ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा. और वी नो दैट द DRS ऑफ normal of plane and DRS of straight line, because it has given that, we have given that equation of plane AX plus BY plus CZ plus D equal to 0, while equation of straight line X minus X1 upon A1 is equal to Y minus Y1 upon B1 is equal to Z minus Z1 upon C1. And ABC are the direction ratios of normal of plane, while A1, B1, C1 are the direction ratios of given line. So we can find out angle between two lines, normal and given lines, which is equal to 90 minus theta. So equation of angle between two straight lines, two lines, we know that cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root summation of A1 square, summation of A1 square RE into under root summation of A2 square, under root summation of A2 square. तो cos 90 minus theta, एंगल क्या है टू लाइंस के बीच का? 90 minus theta. So cos 90 minus theta is equal to A1 plus B1 A1 plus B1 plus C1 upon under root A square plus B square plus C square into under root A1 square plus B1 square plus C1 square. Since cos 90 minus theta is equal to sin theta is equal to A1 plus B1 plus C1 whole upon under root A square plus B square plus C square into under root A1 square plus B1 square plus C1 square. When theta equal to 0 is that line is parallel to plane. Line is, when theta equal to 0, angle between plane and line will be 0. When it will be 0? When plane and line, यदि हम लाइन से इसको करें और ये प्लेन हो गया तो प्लेन एंड लाइन 360 से घुमा तो लाइन कहीं भी रहे, प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल, then angle between line and plane will be, line and plane will be 0. But यदि हम इसको इस तरह से ले लें तो it will be normal of plane and this is line. When line is parallel to plane, then normal of plane will be perpendicular to the line. So condition of perpendicularity of two lines is applied. It means when plane and line is parallel to each other,
when plane and line is parallel to each other, then normal of plane and straight line will be perpendicular. So condition of perpendicularity of angle between two lines is applied. In this case, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. It means when two lines are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. And when plane and line is parallel, then line and normal of plane will be perpendicular. So condition of perpendicularity is applied when both are parallel, plane and line are parallel. But when plane and line is perpendicular, when plane and line, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और मेरा पाम जो है वो क्या है, पाम मेरा है आपका क्या, मेरा पाम प्लेन है और ये जो आपका पेन है बोर्ड मार्कर वो स्ट्रेट लाइन है. तो व्हेन प्लेन एंड लाइन इज परपेंडिकुलर, देन नॉर्मल ऑफ प्लेन, then normal of plane will be parallel, the normal of plane will be parallel to the line, then normal of the plane will be parallel to line. So parallel condition of two lines is applied. Condition of parallelism of two lines is applied now, and it will be a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. When a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then two lines will be parallel, and it happens when plane and line will be perpendicular on each other. Okay, ये तो एक टॉपिक था. सेकेंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है, कंडीशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन लाई इन ए प्लेन. एक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन, हमने कहा कि एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और एक प्लेन का इक्वेशन है. तो वो यदि आप ये कह लो कि किसी प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है और वो पूरी ड्रा की गई स्ट्रेट लाइन प्लेन के अंदर ही उपस्थित है, उस प्लेन का पार्ट है, तो इसे कैसे प्रूव करोगे? क्या कंडीशन होंगी जब कोई लाइन, क्या कंडीशन होंगी जब कोई लाइन पूरी की पूरी प्लेन के अंदर हो? तो देखो, ये मैंने हथेली पे रखा हुआ ये प्लेन है, मेरा पाम मेरा प्लेन है और ये स्ट्रेट लाइन है. यदि ये स्ट्रेट लाइन है, यदि मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये इसके अंदर नहीं है, प्लेन के अंदर कब होगी? जबकि इसके प्रत्येक पॉइंट, लाइन का प्रत्येक पॉइंट प्लेन का हिस्सा हो. और जब लाइन प्लेन का हिस्सा होगी तो जो प्लेन का नॉर्मल है, जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन पर भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल होगा. तो टू कंडीशंस बनती हैं किसी भी लाइन के पूरे के पूरा प्लेन के अंदर होना की. दो ही कंडीशन हो सकती. फर्स्ट कि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इज दैट line is perpendicular or normal of plane is perpendicular on line. When normal is perpendicular, normal of plane is perpendicular on given straight line, then plane and straight line will be parallel. And if any point of line lies on that plane, यदि दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल चीजें हैं, एक प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन, हम जैसे ही प्रूव करते हैं कि नॉर्मल जो आपका है वो नॉर्मल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर है, प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर है. और यदि ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा कि लाइन और प्लेन पैरेलल है. यदि लाइन और प्लेन पैरेलल है और लाइन का कोई पॉइंट प्लेन में है तो निश्चित ही पूरी की पूरी लाइन प्लेन के अंदर होगी, क्योंकि एक पॉइंट से टू अलग अलग पैरेलल लाइंस ड्रा नहीं की जा सकती. मतलब यदि प्लेन में ये सिचुएटेड है, मैं कह रहा हूं कि यदि दो चीजें प्रूव करते हैं, ये हमारा प्लेन हो गया, इस पर कोई स्ट्रेट लाइन है
तो प्लेन का परपेंडिकुलर इस पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0 या A1 A प्लस B1 B प्लस C1 C इक्वल टू 0। जैसे ये प्रूव होगा, ये प्रूव हो जाएगा भैया लाइन और प्लेन। इससे क्या प्रूव होता है, A1A प्लस B1 B प्लस C1 C इक्वल टू 0 से प्रूव होता है कि लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, बट इट डज नॉट शो वेयर इज लाइन। बट any point of line, if any point of line lies on the plane, then line totally included या totally lies on plane। क्योंकि यदि लाइन पैरेलल है और इसका एक पॉइंट यहां है, तो एक पॉइंट से टू पैरेलल, किसी भी पॉइंट से टू पैरेलल अलग अलग नहीं खींच सकते, एक ही कंडीशन में पैरेलल हो सकता है। जबकि यदि पॉइंट है तो प्लेन और लाइन एक ही प्लेन पर स्थित हो, ये तभी संभव है क्योंकि एक बिंदु से दो अलग अलग पैरेलल लाइंस नहीं ड्रा की जा सकती। समझ गए? तो अब देखो इसके लिए प्रूफ कैसे किया है, इस चीज को थ्योरेटिकल बताया मैंने। वी हैव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 is equal to z minus z1 upon c1 is equal to r, and plane ax plus by plus cz plus d equal to 0। ये स्ट्रेट लाइन प्लेन में पूरी की पूरी रहेगी यदि इस लाइन पर स्थित प्रत्येक बिंदु, each point of this straight line lies on this plane। if each point of this straight line lies on this plane, then line to holy line lies in a plane। हमने कहा सपोज a1r प्लस x1 b1r प्लस y1 c1r प्लस z1 lies in the plane। हमने कहा एक पॉइंट, if straight line 1 wholly lies in the plane 2, then point P must satisfy the equation a plane for all values of r। यदि इस पर हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया a1x प्लस x1 b1r प्लस y1 एंड c1r प्लस z1, यदि ये पॉइंट, यदि ये लाइन प्लेन पर स्थित है तो r की सभी वैल्यूज के लिए ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। r की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, लाइन के सभी पॉइंट्स जो हैं वो शो होंगे। आर को यदि हम 0 टू प्लस इन्फिनिटी और 0 टू माइनस इन्फिनिटी ले जाएं तो लाइन पर स्थित समस्त पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे और वो सारे के सारे पॉइंट प्लेन में होना चाहिए। तो यदि ये पॉइंट आर की सभी वैल्यूज के लिए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन प्लेन के अंदर है या स्ट्रेट लाइन प्लेन। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी यहां पर a1r प्लस x1 b इंटू y की वैल्यू b1r प्लस y1 और z की वैल्यू प्लस c इंटू c1r प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब r कॉमन ले लिया तो a1 प्लस b b1 प्लस c c1 प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। Hence the required conditions are a1 plus b1 plus c1 is equal to 0। a1 plus b1 plus c1 is equal to 0 r ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equal to 0। ax1 plus by1 plus cz1 plus d, माने ये दोनों अलग अलग जीरो होंगे तभी ये पूरा जीरो हो सकता है। और ये कंडीशन फुलफिल करती है कि लाइन शुड बी पैरेलल टू द प्लेन एंड एन पॉइंट ऑफ लाइन x1 y1 z1 lies on the plane। if any point of a straight line lies on the plane and line is parallel to the plane, then holy line lies in the plane। दोनों ही कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए कि लाइन का एक पॉइंट
प्लेन पर होना चाहिए, और सेकंड लाइन को प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट यदि है तो एक पॉइंट से टू पैरेलल लाइंस नहीं खींची सकती। तो प्लेन और लाइन पैरेलल है और एक पॉइंट उस पर स्थित, तो सारे पॉइंट्स भी उस पर होंगे, अर्थात लाइन टोटली लाई करेगी किस पर, प्लेन पर। तो ये हमारा क्या था, कंडीशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन लाई इन ए प्लेन। क्योंकि यदि एक पॉइंट की बात करें, यदि पैरेलल नहीं है, एक पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। और यदि पॉइंट नहीं है तो पैरेलल भी कंडीशन हो सकती है। सिर्फ ये सिंगल कंडीशन हो तो लाइन एंड प्लेन विल बी पैरेलल, और सिर्फ ये कंडीशन को यदि हम फॉलो कराते हैं तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि A1 X1 एक पॉइंट प्लेन पर, लाइन और प्लेन का एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो कि प्लेन पर भी है, लाइन पर भी है, तो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ये हम नहीं कह सकते। ये तभी पॉसिबल है जबकि लाइन एंड प्लेन इज पैरेलल एंड वन पॉइंट ऑफ लाइन लाइज ऑन प्लेन। तो ये आपके दो टॉपिक थे, और थर्ड एक टॉपिक और है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसका, जी का। ऐप तो हम लोग कर चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड टॉपिक है वो क्या कहता है वो भी देख लो, उसको ही पढ़ा देता हूं, तो फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो थर्ड टॉपिक आपका बोलता है कि प्लेन कंटेनिंग ए लाइन, प्लेन कंटेनिंग ए लाइन, find out equation of plane which contains a line x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। ठीक है, उस प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना जो इस पूरी की पूरी लाइन को अपने अंदर रख ले। अब हमने किसी भी लाइन के प्लेन के अंदर होने की दो कंडीशन पढ़ी है। पहली कि लाइन को पैरेलल होना चाहिए, लाइन वन contained by any plane if a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। किसी पॉइंट x1 y1 z1 से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन है ये। लाइन वन कंटेन्ड बाय एनी प्लेन इफ a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0 and AA plus BB plus CC is equal to 0 where A, B, C are the direction ratios of normal of plane। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स ए स्ट्रेट लाइन, माने इसको सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया है कि हमने एबीसी क्या मान लिया, प्लेन के, उस प्लेन के रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज। लेट एबीसी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, लेट एबीसी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, then equation of plane which contains this straight line will be a b c, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। और इसी तरह से a a plus b b plus c c is equal to 0, माने ऊपर नीचे डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके आप एक प्लेन का इक्वेशन लिख लोगे और एक नोट कर दोगे क्या, कंडीशन। तो यही चीजें हैं
और ये दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, अब इससे हम क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के रख देंगे, तो वो प्लेन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा जिसमें ये लाइन पूरी की पूरी समाहित हो जाएगी। तो ये अपना था एक्सरसाइज 18D, 18G, एक्सरसाइज 18G। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द x minus 1 upon 2 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z plus 3 upon minus 2 and plane x plus y plus 4 is equal to 0. Compare equation of a straight line with general equation of a straight line. X minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z1 minus z1 upon c, and compare equation of plane with general equation of plane. Ax plus by plus cz plus d equal to 0. We get direction ratios of normal and direction ratios of line. Direction ratios of line will be a1 equal to 2, b1 equal to 1, c1 equal to minus 2, and direction ratios of normal will be a1 equal to 1, b1, a2 equal to 1, b2 equal to 1, and c2 equal to 0. We know that angle between line and plane are sin theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root summation of a1 square into under root summation of a2 square. तो अब a1 b1 c1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 3 और माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो गया। तो न्यूमरेटर में आ गया कितना 3 अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 9, तो ये आ गया 3। ये कितना आ गया 3 नीचे 1 का और सेकंड का आ जाएगा अंडर रूट 2, तो 3 से 3 कैंसिल। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2 मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4। ये सीधा सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैंने ओरल बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन लाइन x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 3 upon lambda and plane x plus 2y plus 3z equal to 4 is cos inverse under root 5/4 14. Find the value of lambda. We have given that equation of straight line, equation of plane, and angle between line and plane. Then find out the value of lambda. क्वेश्चन बहुत सीधा सा है कि हमें प्लेन का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इनके बीच बनने वाला एंगल भी दिया हुआ, एक वैल्यू अननोन है, और हम जानते हैं प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट समेशन ऑफ e1 स्क्वायर अंडर रूट समेशन ऑफ e2 स्क्वायर। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का के डायरेक्शन रेशोस और प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस, दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है। तो यहां पर यदि हम x माइनस x1 अपान a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 से तुलना करते हैं, तो a1 के प्लेस पर 1 है, b1 के प्लेस पर 2 है और c1 के प्लेस पर लैम्डा है, अर्थात डायरेक्शन रेशोस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशोस क्या होगा 1 to लैम्डा। इसी तरह से हम प्लेन 2 की तुलना करते हैं किससे, जनरल इक्वेशन से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जहां a b c प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस है। तो डायरेक्शन रेशोस क्या हो गया, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस 1 a2 इक्वल टू 1 b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 3। सिंस sin theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अंडर रूट समेशन ऑफ e1 स्क्वायर अंडर रूट समेशन ऑफ, ये हमें दिया था थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स में दिया था, तो हमने कहा थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5/4 और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस
cos square theta will be 5/14. So sin theta is equal to 3/√14. तो हम वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/√14. a1 a2 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into lambda upon √1 square plus 2 square plus lambda square into √1 square 2 square plus 3 square. कैलकुलेट किया हमने तो क्या मिला 1 plus 4 plus 3 lambda whole upon 4 plus 1 5 plus lambda square √14 is equal to 3/√14. Now simplify it. 5 plus 3 lambda 5 cross multiplication 3/√14 into √14 into √5 plus lambda square. √14 is cancelled by √14. Then we get 5 plus 3 lambda is equal to 3/5 plus lambda square. अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया. 5 plus 3 lambda square 5 plus 3 lambda होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 9 और ये हो गया √ इससे हट गया 5 plus lambda square. इसमें फार्मूला लगा दिया. स्क्वायर ऑफ 5 25 plus 9 lambda square plus 2 into 5 10 into 3 30 lambda is equal to 45 plus 9 lambda square. अब हमने कहा 9 lambda square एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा. बच गया 30 lambda is equal to 45 plus 9 lambda square minus 9 lambda square minus 25. तो अपने को क्या मिला lambda equal to 20/30. Then value of lambda will be 2/3. ये था क्वेश्चन नंबर 2. Third question, what says third question? Third question says find the value of lambda for which the line x minus 2/9 is equal to y minus 1/lambda is equal to z plus 3/-6 is perpendicular to the plane 3x minus y minus 2z equal to 7. तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन हमारी है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है. माने कंडीशन फिक्स है कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2. Line 1 is perpendicular to plane 2, and when line is perpendicular to plane 2, then normal of plane will be parallel. ये नॉर्मल लेने, ये आपका लाइन हो गई और ये प्लेन हो गया. तो लाइन और नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे. और दो लाइन पैरेलल होती है मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. और हम अच्छी तरह से जानते हैं तो हमने कहा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वी गेट. इसका जनरल इक्वेशन लाइन स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, x minus x1/a y minus y1/b इज इक्वल टू z minus z1/c. तो कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू a1 इक्वल टू 9 b1 इक्वल टू लैम्डा एंड c1 इक्वल टू -6. डायरेक्शन रेशोस ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन a2 इक्वल टू 3. इसको भी कंपेयर किया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. तो a के प्लेस पर क्या आ रहा है 3, तो a2 इक्वल टू 3. b के प्लेस पर क्या आ रहा है प्लस b है तो -1 आ रहा है तो b2 इक्वल टू -1. और c के प्लेस पर प्लस cz प्लस c के प्लेस पर आ रहा -2 तो c2 इक्वल टू -2. अब इसमें कुछ नहीं है. सिंस स्ट्रेट लाइन 1 is perpendicular to plane 2, so a1/a2 is equal to b1/b2 equal to c1/c2 होगा ही. यदि ये लाइन हमने कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है उसे फॉलो करेगा. a1/a2 equal to b1/b2 is equal to c1/c2. now substitute value a1/a2 9/3 is equal to p1 lambda/-1 c -6/-2. तो 9/3 3 टाइम्स कैंसिल हो गया. और इसी तरह से यहां भी देखो तो प्लस माइनस प्लस 2 3 जा 6 तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा/-1 तो माइनस लैम्डा इक्वल टू अपने को मिला 3. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू -3. ये था क्वेश्चन 3rd. नाउ क्वेश्चन 4th.
Prove that line x minus 2 upon minus 1 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 4 upon minus 1 is parallel to plane x plus 3y plus 5z equal to 4. क्वेश्चन इज कि हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, लाइन प्लेन के पैरेलल है. लाइन एंड प्लेन विल बी पैरेलल. क्वेश्चन इज, यदि कंफ्यूजन होती है, लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल एंड व्हेन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल देन नॉर्मल ऑफ प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन. व्हेन प्लेन एंड लाइन, ये प्लेन हो गया आपका. क्वेश्चन इज कि ये प्लेन है और ये आपकी लाइन है, दोनों पैरेलल है. प्रूव करना हमें कि दोनों पैरेलल है. अब दोनों पैरेलल है तो 100% क्या है कि जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन पर परपेंडिकुलर होगा. टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. हम बात प्लेन और लाइन की करते हैं और फिर सीधा नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल पे आ जाते हैं. तो हमेशा टर्म्स किसके बीच में देखो, प्लेन के नॉर्मल के बीच में. अब हम क्या कहते हैं कि दिया है, हम कंपेयर कर देते हैं स्ट्रेट लाइन की कंपैरिजन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से. तो a1 इक्वल टू -1, b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू -1. इसी तरह से कंपेयरिंग इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इक्वेशन a2x plus b2y plus c2z plus d इक्वल टू 0. यहाँ abc की जगह a2 b2 c2 कर दिया तो डायरेक्ट अपने को वैल्यू मिल गई. a2 इज इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू 5. अब line 1 will be perpendicular on plane 2 if it satisfy condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0. लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर क्या होगी, प्लेन के पैरेलल होगी यदि प्लेन का नॉर्मल लाइन पर परपेंडिकुलर हो, अर्थात प्लेन का नॉर्मल और लाइन के बीच परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 फुलफिल होती है. और हम चेक कर लेते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 5 वी गेट 0. हैंस प्रूव्ड. लास्ट में नोट कर दोगे हैंस प्रूव्ड. तो ये था क्वेश्चन 4. इसके आगे क्वेश्चन अब आगे सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 5 से फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d if the plane 2x plus 4y minus cz plus d equal to 0 contained the straight line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 3 equal to 1 is equal to z minus 1 upon 4. प्लेन कंटेंट, प्लेन इस लाइन को अपने अंदर पूरी तरह से समाहित करता है. प्लेन कंटेंट गिवन स्ट्रेट लाइन. प्लेन सिंस प्लेन कंटेंट, चूंकि प्लेन लाइन को अपने अंदर समाहित करता, प्लेन कंटेंट, प्लेन 1 कंटेंट लाइन 2. सो यदि ये करता है तो क्या होगा, ax तो क्या होना चाहिए 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस माइनस c इंटू 4 इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड कंडीशन क्या बन जाएगी, अच्छा डायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या है फिर तुम्हारे लिए डायरेक्ट हो जाएगा. तो इस कारण से मैं कंपेयर 1 with ax plus by
plus Cz plus D equal to 0. We get DRS of normal. DRS of normal, A1 is equal to 2, B1 is equal to 4 and C1 is equal to minus C. Okay? Compare equation 2 with x minus x1 upon a1, sorry, a2, y minus y1 upon b2 is equal to z minus z1 upon c2. We get x1 y1 z1, x1 y1 z1 is equal to 1 3 1. मान लाइन पर स्थित कोई पॉइंट कौन है? 1 3 1 एंड A2 B2 C2 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट अलग अलग लिख देता हूँ, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 1 एंड C2 इक्वल टू 4. ठीक है. अब क्या कह रहा है ये कि लाइन 1, अब यहां से शुरू करते हैं. लाइन 1, लाइन कंटेंट बाय एनी प्लेन, लाइन कंटेंट बाय एनी प्लेन इफ it fulfill these conditions. कोई भी लाइन किसी प्लेन के द्वारा रखी जाती, निर्धारित की जाती, तभी हो सकती है जबकि ये फुलफिल करे कौन सी कंडीशन? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0 एंड al प्लस bm प्लस cn इज इक्वल टू 0. अर्थात लाइन का एक बिंदु कहाँ होना चाहिए? लाइन का एक पॉइंट प्लेन पर होना चाहिए और लाइन और प्लेन का नॉर्मल, लाइन और प्लेन पैरेलल होना चाहिए. अर्थात लाइन पर प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए. हेंस अब देख लेते हैं al प्लस b1 प्लस cn, a1 a2, या इसको चाहो तो a1 a2 कर देता हूं, b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. हेंस a1 a2 2 into 2 plus b1 b2 4 into 1 plus c1 c2 minus c into 4 is equal to 0. एंड इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 माइनस 4c is equal to 0. तो c is equal to 4 minus 4c is equal to minus 8. So c will be equal to 2. And यहां करता हूं साथ, एंड ax1 by1 cz1 d, माने x1 y1 z1 की वैल्यू रख दें हम प्लेन के इक्वेशन में. तो 2 इंटू एंड 2 इंटू x1 वैल्यू ऑफ x1 1 प्लस 4 इंटू y1 3 प्लस माइनस c इंटू z1 1 plus d is equal to 0. Since c is equal to 2 implies that 2 plus 12 14 minus 2 plus d
is equal to 0 implies that 12 plus d is equal to 0 implies that d is equal to minus 2. Answer C is equal to 2 and d equal to minus 12. तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया. सिक्स्थ क्वेश्चन says find the equation of plane which contains the line x upon minus 2. Find the equation of plane which contains the line x upon minus 2 is equal to y minus 1 upon 3, 1 minus z upon 1 and a point. ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इस पूरी लाइन को, इस लाइन को अपने अंदर पूरी तरह से समाहित करता हो. ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो गिवन स्ट्रेट लाइन को अपने अंदर रखता हो तथा प्लेन, वो प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता हो या इसको भी अपने अंदर रखता हो. इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम. इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेंट E1 दे देता हूं. इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेंट स्ट्रेट लाइन 1 विल बी, सपोज कर रहे हैं हम कि यहां ऊपर नीचे एक को मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स प्लस का साइन बी वाई माइनस 1 प्लस सी 1 माइनस जेड है तो 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0. सी 1 माइनस जेड इक्वल टू 0. और चाहो तो इसको इंप्रूव करके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें, यहां से माइनस साइन कॉमन निकालें, ये क्या हो जाएगा जेड माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1. तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं. जेड माइनस 1 a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 1 इक्वेशन फर्स्ट. एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेंट स्ट्रेट लाइन 1 विल बी सेकेंड माइनस 2a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. किसी भी स्ट्रेट लाइन को पूरा का पूरा समाहित करने वाले प्लेन का इक्वेशन दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए. पहला, ऊपर नीचे एबीसी का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, नीचे एबीसी का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो एक इक्वेशन मिला. सिंस प्लेन 1 कंटेंट, ये हमारा जो इसको 1 दिया था मैंने 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं. प्लेन 2 कंटेंट पॉइंट -102. चूंकि समतल जो है हमारा प्लेन जो है वो रिक्वायर्ड प्लेन, जो अपेक्षित हमारा अपेक्षित समतल का समीकरण है वो अपने अंदर -102 को भी रखता है. रिक्वायर्ड प्लेन, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन कंटेंट पॉइंट -102, then it satisfies the equation of plane. So a into -1 plus b into 0 minus 1 plus c into 2 minus 1 is equal to 0, and we get minus a minus b plus c is equal to 0. Equation number 4. ठीक. Now from equation 3 and 4 by cross multiplication 3 and 4, now apply cross multiplication on equation 3 and 4. We get a upon 3 into 1, 3 minus 1 into -1 plus 1 minus 1 is equal to b upon -1 into -1 plus 1 -1 into -1 plus 1
और -2 × 1, -2 × 1 -2 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू C अपॉन -2 × -1 प्लस 2 -2 × -1 प्लस 1 3 × -1 तो -3 माइनस प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये ले लो तो ABC की वैल्यू क्या आ गई, A इज इक्वल टू 2K, B इज इक्वल टू 3K, C इज इक्वल टू 5K। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन, अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन था प्लेन का, इसमें ABC की वैल्यू निकाल के रख दी। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ABC in equation second, we get required equation। तो क्या हो जाएगा, A × x तो 2K x प्लस 2K y -1 प्लस 5K z -1 इज इक्वल टू 0। टेक आउट कॉमन k तो 2x प्लस 2y प्लस 5z, 2x प्लस 2y प्लस 5z, यहाँ आया कितना -2 और यहाँ आया -5, तो ये हो गया -7 इज इक्वल टू 0। सिंस k इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, समानुपाती नियतांक 0 नहीं हो सकता और ना होता है। सिंस k इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इट कैन नॉट बी 0, सो 2x प्लस 2y प्लस 5z -7 इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए हमारे प्लेन का इक्वेशन।